afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. बस 6 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। મેમ જમી લીધું आज तो વેલું વેલું हाँ, रोज नो टाइम છે. અવાજ ધીમો આવે મેમ. ઓકે, હું આવું થોડી વારમાં, મીન્સ કે જ્યારે બધા આવી જાય, જોઈન થઈ જાય ત્યારે જોઈએ. જો સપોઝ ત્યારે અવાજ નહીં આવતો હોય તો મે બી નેટવર્ક ફ્લક્ચ્યુએટ થતું હોય એના લીધે હોઈ શકે. તો નેટ હરખું કરાવ મી વાઈફાઈ નખાવ્યું તારી જેમ. રેકોર્ડ થાય છે મીટિંગ. वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है. अगेन गुड आफ्टरनून. आज के दिन का लास्ट लेक्चर है आपका. आई होप कि सब एनर्जेटिक है. ठीक है, बोर तो नहीं हुए आई थिंक. कि वैसे भी यहाँ पे अभी लंच ब्रेक हुआ था आपका. Am I audible properly? નો મેમ Okay. યસ 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 મેમ Yes, yes, ma'am. Okay. યસ યસ. गूगल क्लासरूम पे मैंने ट्यूटोरियल 1.1 शेयर किया है. अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं,
यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ आपको। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। મેડમ મારે 4DF1 નું ફોલ્ડર જ નથી આવતું. ઓકે, લેટ મી ચેક. તે એપ્લાય નથી કર્યું, કિશન સરે મોકલ્યું છે. અગર જોઈન કરેલી છે, અગર એમની રિક્વેસ્ટ તો થશે, બાકી નહીં થાય. लेट मी चेक कि किनकी पेंडिंग है. મીટ એડેડ જ નથી, આઈ થિંક. મારે નથી મેમ. ઓકે, લેટ મી એડ યુ. મીત કાવર. આ કેવી રીતે કરવાનું મેડમ? વેઇટ, હું કહું છું. તમને જે આપણા બીજું કોઈ છે જેમનું નથી થયું જોઈન? कोई है ऐसा जिनका गूगल क्लासरूम जिन्होंने नहीं किया है? મેડમ મારું નથી થયું હજી. કોણ બોલે છે? વૈષ્ણવ. રાજકુમાર. और कोई है? ઠીક છે. અનુજ, મીત અને રાજકુમાર, તમને જે આપણે મારવાડીથી જે પ્રોવાઈડ કરેલું છે સ્ટુડન્ટ મેલ આઈડી, એમાં મેલ ચેક કરો. એમાં મારો મેલ આવેલો હશે. થઈ ગયો જોઈન મેમ. ઓકે, ડન. જોઈન કરી દો, આમાં થઈ જશો તમે એડ. અનુજ અને રાજકુમારનું બાકી છે, હજી સ્ટીલ પેન્ડિંગ બતાવે છે. ઠીક છે. ડન મેમ, થઈ ગયું. હા, ઓકે. ડન મેડમ, થઈ ગયું. ઓકે, ડન. હા, મને પણ અહીંયા બતાવે છે એડેડ. નહીં, રાજકુમાર નથી બતાવતું. રાજ જોઈન કરો. થઈ ગયું, એક જ મિનિટ જોઈ લઉં. हाँ, डन. ओके, ठीक થઈ है. ગયું उस पे મેડમ? आपको दिखाएगा. हाँ, થઈ ગયું છે. ओके, यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो. बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं. तो हम देखते हैं ट्यूटोरियल्स जो लास्ट टाइम जैसा લેબ heading બુક रहेगा. અલગ બનાવવાની કે મેમ એમાં ને એમાં હાલશે? हाँ, लैब बुक अलग. डिप्लोमा स्टडीज ब्रांच 4 डिस्क्रिप्शन लिखा है सब. सब्जेक्ट એટલે કાલે इंजीनियरिंग. સબમિટ કરવાનું કા મેડમ? હા, હા, એના કાલે માટે સબમિટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું આપું છે ને? છું. ના, કાલે નથી કરવાનું. હું એ ડેટ એક્સટેન્ડ કરી દઈશ કેમ કે આજે આખું પૂરું નહીં થાય. ओके, डेट लिखिए आज की 2/2/2021, यूनिट 1 एंड डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. जो यूनिट 1 है वो उसका टाइटल. अब उसमें सब टाइटल है ट्यूटोरियल 1.1, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. जो हमने अभी तक ऑपरेशंस देखे मैट्रिसेस देखे. મેડમ, तो हाँ, વોઇસ બહુ કટ થાય હો તમારો. આજે તો મેડમ મને લાગી હો. ओके, let me check. મેમ કેટલા પન્નાની બનાવવાની? हाँ, કેટલા પન્નાની બનાવવાની? अराउंड 200. ओके, મેમ તમે હજી તમે આપશો ને બધા ટ્યુટોરિયલ હજી તો સ્ટાર્ટિંગ થયું ને કા? નવી જ લેવી જોવા કાકા. નવી જ લેવી પડશે. યસ, 200 પેજીસની. રાઇટ ડાઉન everyone. Question 1, add and subtract following matrices.
दैट इज क्या फाइंड करना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे a और b दोनों दिए गए हैं क्वेश्चन वाइज, तो उनके लिए a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करने हैं। મેમ તમે કઈ બોલો છો કે નહીં? લખો પેલા ક્વેશ્ચન પછી આપણે સોલ્વ કરીએ. હાલો મેડમ, હેલો, યસ. હાલો મેડમ. એલા બોલે જ છે એલા. અનુજ, નેટવર્ક આ નેટવર્કમાં રીકનેક્ટ ખાસી કરું, ખામી છે. રીકનેક્ટ કરું મેડમ? હાલો. યસ, કરો કરો કરો. આ કર એમ કીએ. એને ચેટ બોક્સમાં આન્સર આપો મેડમ, તમે રીકનેક્ટ કરવાનો. હા, ઓકે. કોઈ લખી દો, ચાલો હું અહીંયા બિઝી છું. मैम आंसर हाँ, बोले बताइए. -207 2 28 -8 11 -17 ओके, गुड, सही है. ओके, ए प्लस बी फाइंड करने को बोला है, ठीक है. ए प्लस बी कैसे फाइंड करोगे? तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनका एडिशन मीन्स कि सी पहले तो वो चेक करना है कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं. इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3. कैसे चेक करोगे? तो हाउ मेनी रोज है, कितनी रो है इसमें, 3 रो है तो हमने ये पहले 3 लिखा. फिर कितनी कॉलम है, तो 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हुआ. ठीक, तो पहले वो चेक करते हैं दोनों के ऑर्डर सेम है, हाँ, तब जाके ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होंगे. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले तो हम एडिशन फाइंड करते हैं. एडिशन कैसे फाइंड करोगे? तो सी यहाँ पे जो फर्स्ट वाली 1 1 एंट्री हमें लिखनी है, तो वो सेम 1 1 एंट्री ए और बी की करनी है और दोनों का एडिशन लेना है. तो ए की एंट्री प्लस बी की एंट्री, देन दिस एंट्री मीन्स की 1 2 एंट्री, 1 2 एंट्री, तो ये 1 2 इसकी और इसकी भी 1 2 एंट्री. तो क्या है 1 प्लस माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1. देन थर्ड एंट्री तो 4 प्लस 3, फोर्थ एंट्री तो 5 माइनस 3, 2 प्लस 6 minus 6 plus minus 2, that is minus 6 minus 2, then 7 plus 4 minus 3 plus 2 and 2 plus 5. और इसकी कैलकुलेशन करो, क्या आंसर मिलेगा? तो -2 plus 0 that is -2, 1 હેલો minus મેમ, 2 0. Yes, અનુજનો ફોન આવ્યો છે કે હા જોઈન નથી થવાતું લેક્ચરમાં. let me check. આ થયો મેમ. Here, okay. ठीक है, 5 minus 3 2, 2 plus 6 8 minus 8 11 minus 1 and 7. सिमिलरली ए माइनस बी, ऑर्डर खास करके आपको ध्यान में रखना है, पहला ए देन माइनस करके बी. ऐसा नहीं कि बी का पहले एलिमेंट लिख दो फिर माइनस करके ए का एलिमेंट, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो ये दोनों एंट्री का सब्ट्रैक्शन. क्या करना है, ए माइनस बी मीन्स की एक की एंट्री माइनस करके, देन सेकंड के लिए ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 1 माइनस माइनस. सिमिलरली 4 माइनस 3, 5 माइनस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6 माइनस माइनस 7 माइनस 4 minus 3 minus 2 and 2 minus 5. Okay, कैलकुलेशन करो तो क्या होगा, -2 2 1 8 -4 वेट
कैलकुलेशन में कुछ गलती शायद की है। ओके हाँ सही है। -4 देन 3 -5 माइनस ये फर्स्ट का आंसर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके आई थिंक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड, राइट डाउन क्वेश्चन। मैम लिखना बाकी है फर्स्ट का। ठीक है। इसका मैम बोले सॉल्यूशन हाँ 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस हाँ sin स्क्वायर सही है। थीटा हाँ ओके माइनस इसके बाद a माइनस b का है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 -1/1। गुड। हाँ सही है। हो गया मैम, 2 नंबर समझाइए। ओके सेकंड किसी का बाकी है? अगर आ रहा तो मैं सॉल्व कराती हूँ। आपका आंसर ये होना चाहिए a प्लस बी का। a प्लस बी इक्वल्स टू 1 1 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड a माइनस बी का होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 -1 एंड 1। अगर नहीं हुआ है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कराती हूँ। मैम एक बार समझाइए। हाँ हम सॉल्व करते हैं पूरा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आंसर लिखा था, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी का। तो a प्लस बी मीन्स कि a जो है उसकी फर्स्ट एंट्री, b की फर्स्ट एंट्री, उन दोनों का एडिशन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन ये 1 प्लस 0, तो ये 1 प्लस 0, देन 0 प्लस 1, ओके 0 प्लस 1 एंड देन ये दोनों
sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ हमें ये आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन। इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया, ये भी 1, ये भी 1, और इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो ये आ जाएगा। ओके, सिमिलरली a माइनस बी, तो फर्स्ट एंट्री माइनस सेकेंड एंट्री, ए है इसलिए पहले ए देन माइनस बी, तो ए की एंट्री माइनस करके बी की एंट्री, सिमिलरली ए की एंट्री माइनस बी की एंट्री, ए की एंट्री बी की एंट्री, एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ना उसके लिए हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, वैसे है एक्चुअली, ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा, बट ये वैसे आपको पढ़ने में नहीं आया तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ इसका आंसर आएगा माइनस cos 2 थीटा, इसको इग्नोर करो, तो ये ऐसे कुछ हम रखते हैं। ओके, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी एक आइडेंटिटी है, तो वो इसका आंसर 1। મેમ આ 14 જણા છે એમ ખાલી બી બેચ ના આટલા જ છે? હોય છે પણ આપણે ક્યાં અરાઉન્ડ 26 to 28 સ્ટુડન્ટ્સ જ ઓલવેઝ જોઈન થતા હોય છે લેક્ચરમાં પણ ઇવન, તો એ હિસાબે 14 બરાબર છે। Now next question. इसका मैम बोले
मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. विजिबल मैम। थर्ड क्वेश्चन विजिबल है आपको? यस मैम हाँ यस विजिबल मैम, है। क्वेश्चन विजिबल। हाँ, बोले मैम इसका सोल्यूशन। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो मैम, इसका सोल्यूशन बोले। अंकित, आपकी आवाज पहला मुझे मैम नहीं। को करने तो दे भाई। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का अभी आंसर मैम करेंगे फिर बोलना। प्लस कि अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है? तो 0 5 -3 -6 6 8 एंड -6, ये a प्लस बी का आंसर है। नाउ a माइनस बी का आंसर है 4 -16 -13 3 8 then -10 then 4 and 8. Okay, any doubt? Anyone? नो मैम। મેમ આ તો તમે ડાયરેક્ટ આન્સર જ લખ્યો છે ને? So, આન્સર જ લખ્યો ને ડાયરેક્ટ? મને કોઈનો જવાબ નથી આવતો. आनंद कह रहा है कि आप सिर्फ आंसर लिख रहे हो ना। हाँ, मैं सिर्फ आंसर ही लिख रही हूँ। आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे आगे मैंने की थी ना कैलकुलेशन वैसे। अब क्वेश्चन 4 एंड 5 आप खुद से करोगे क्योंकि हमें यहाँ पे करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो एक एटलीस्ट हम सम करते हैं, ठीक है? 4th एंड 5th आप खुद से कर लेना, स्पेस छोड़ दो। दो दो स्टेप के लिए सम्स है, ठीक है? तो ये स्पेस छोड़ दो। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Write down everyone. Find AB and BA for the following matrices A and B, if possible. If possible बोला है मीन्स कि हर बार एग्जिस्ट दोनों करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने बताया था आपको कि लैब में आपको आगे के टॉपिक्स प्रिपेयर करके आना है। कौन बताएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना होगा? पहले तो क्या ध्यान में रखना है? पहले ये एग्जिस्ट है या वाले नहीं है मैम वो देखना होता है मैम। हाँ, बट कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? पहले इसका ऑर्डर निकालेंगे, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर। यस, वेरी गुड। ए का ऑर्डर बताओ क्या होगा? 3 × 3। यस, 3 क्रॉस 3। 3 बी का ऑर्डर 3 × 2। 3 क्रॉस 2। 2 राजकुमार मैंने एग्जिस्ट। ओके वेट, राज राज राज
છે કે નહીં અહીંયા છે પણ મોબાઈલ સાઈડ પર રાખીને બેઠા છે ભાઈ. રાજ વૈષ્ણવ. ओके करण. करण है यहाँ पे. यस मैम. इसका मुझे बताओ कि ऑर्डर कैसे निकालते हो. ये मैंने लिखा ए का ऑर्डर 3x3, तो कैसे ये 3x3 हुआ वो मुझे बताओ. मैम रो ये 3 है, कॉलम भी ये 3 है. ओके, अगर तो मैं बताऊं आपको कि 5 3 2 1 5 4 3 1 2 और मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं 4 -1 0, तो इसका ऑर्डर मुझे बता सकते हो. यस मैम. हाँ बताओ. 3 3 हाँ रो 3 है क्रॉस 2 है. 3x2. हाँ मैंने यहाँ पे लिखा वो, हाँ ये वाला न्यू वाला लिखा वो. यस मैम. तो 3 क्रॉस 2 नहीं मैम, 2 क्रॉस 3 है. कितनी कॉलम्स दिख रही है आपको. कॉलम 2 है. 2 ही दिख रही है यहाँ पे. कॉलम आप बता सकते हो, पढ़ सकते हो कौन कौन सी है कॉलम. पढ़ के दिखाओ. फाइव 1 3 3 5 1 है. बाकी की ये दो कहाँ पे गई. अच्छा मैम, ये वो लोग दिखाई नहीं दे रहा था मैम. स्क्रीन रोटेट कर दो. ठीक है, तो पूरी की पूरी स्क्रीन आपको दिखी. आप यस मैम, अब दिखाई दे रही है. रो मतलब 3 है या कॉलम 4 है मैम. यस गुड. तो ये इसका ऑर्डर है 3x4. गुड. तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं कि ए बी का हमने ऑर्डर डाले 3x3 एंड 3x2. ए की नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रो दोनों सेम होनी चाहिए है. हाँ है. तो therefore ए बी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम लिखेंगे ए बी एग्जिस्ट एंड उसका ऑर्डर. तो इट हैज ऑर्डर एंड ऑर्डर कितना होगा ये बताएगा. 3x2 होगा मैम. यस, जो भी बाकी 3x2 बचता है वो वाला होगा. ठीक है, तो 3x2. मैम एक डाउट है, यस बताओ. एक छोटा सा डाउट. मैम पहले जैसे ऑर्डर लिखते हैं उसमें पहले रो लिखेंगे या पहले कॉलम लिखेंगे. रो लिखेंगे ना. पहले रो फिर कॉलम. हाँ, पहले की रो. यहाँ पे हम जब भी एग्जिस्ट करता है यानी प्रोडक्ट, वो कैसे चेक करोगे, तो फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम चेक करनी है और सेकेंड वाले की नंबर ऑफ रो चेक करनी है. बट जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब फर्स्ट की रो कंसिडर करनी है, सेकेंड की कॉलम. क्लियर. मैडम यस मैम. आंसर बोलो मैडम. 1 by 1. अरे मैडम, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि m इंटू एन, जो m इंटू एन लिखा जाता है वहाँ पे r इंटू सी भी तो लिख सकते हैं ना मैडम. कुछ भी लिख सकते हो, बस वो नंबर इंडिकेट करते हैं. हाँ, तो मैं अगर एग्जाम में r बाई सी लिखूँ तो चलेगा. हाँ कोई बात नहीं, बट आर और सी वो क्या है वो मेंशन कर देना कि आर एंड सी आर. रो इंटू कॉलम, मतलब समझने में आसानी होगा ना मैडम. क्या क्या क्या. रो हो जाएगा r से और सी से कॉलम हो जाएगा. हाँ सही है. ये भी आप कोई भी Okay. नोटेशन का यूज कर सकते हो. ओके ओके. ओके. अब ए बी जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो पहले तो जो जनरली सब गलती करते हैं कि एक स्टेप कम लिखना पड़े उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लिखते नहीं कि ए क्या है फिर बी क्या है. बट आई सजेस्ट कि ये पहले लिख दो. ठीक है, क्योंकि ए बी में जब भी कैलकुलेशन करनी है तब आपको टफ नहीं लगेगा, बट जब भी बी ए की कैलकुलेशन करनी है तब आपको ये पहले कंसिडर करना है फिर ये कंसिडर करना है, तो उसमें गलती डेफिनेटली होगी. तो बेटर कि ये लिखने की आदत डाल दो. ये दोनों मैट्रिसेस पहले की, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स. ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. अब हमें जो कि ये 3x2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, तो हम इसका मॉडल लिख देंगे. ठीक है, ए बी का मॉडल का होगा तो 3x2 का कैसे होगा.
तो 3 रो लिखनी है और 2 कॉलम लिखनी है। तो उस हिसाब से इसका मॉडल क्या होगा? हेलो मैम, आवाज भैया। यस बोलो। ओके 3 क्रॉस 2। મેમ ઓલું કઈ સંભળાણું જ નહીં મેડમ, તમે ઉપરનું કર્યું નહીં કઈ. ઓકે ફરીથી સમજાવો। તમારું નેટવર્ક વયું ગયું હતું તમારું. ओके वेट। क्या करेंगे हम कि ये जो 3 क्रॉस 2 का हमें मिलेगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हम 3 क्रॉस 2 का मॉडल लिख देते हैं। मॉडल कैसा होगा 3 क्रॉस 2 का? तो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। 3 क्रॉस 2 का तो इस टाइप का ऐसा बनेगा। अब ये जो फर्स्ट नंबर है वो ए के लिए है, ये जो सेकंड नंबर है वो बी के लिए है। इतना ही ध्यान में रखना है। नाउ ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो वाली रो कंसीडर करनी है, और ये सेकंड नंबर जो लिखा है वो वाली कॉलम कंसीडर करनी है, ये नंबर की। ठीक है, तो हम ये एंट्री हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या, तो ये 1 1 होगी। तो 1 1 मीन्स कि ए की फर्स्ट रो, ठीक है, दिख रहे 2 4 2, तो ए की फर्स्ट रो कैसे लिखने हैं 2 4 2, और फर्स्ट कॉलम किसकी? बी की। क्या है फर्स्ट कॉलम? तो 5 to 4। 4। यस गुड, 5 2 4। नाउ सेकंड ये वाली कैसे करते हैं? तो उसके लिए ये वाली करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 2। 1 2 मीन्स की फर्स्ट रो, तो क्या है ए की फर्स्ट रो, तो 2 4 2, एंड सेकंड कॉलम 1 to 1। 1 2 1। गुड। सिमिलरली 2 1 एंट्री मीन्स की सेकंड रो ए की एंड बी की फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो क्या है 1 4 0। 1 4 0। 1 4 0 एंड सेकंड फर्स्ट कॉलम, तो 5 5 to 4। then 2 2 second row second column a की second row क्या है 1 4 0। ए तुम चुप रहो। and second column तो 1 2 3 1। ऐसे थर्ड रो a की थर्ड रो क्या है, तो 2 6 0 एंड फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 4 3 2। तो थर्ड रो a की थर्ड रो क्या है 2 6 0 एंड सेकंड कॉलम, तो 1 बस इसके ऊपर से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है। दैट्स इट। ये मॉडल आपको बनाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये निकाल देती हूँ। तो कैलकुलेट करो कि क्या आंसर मिल रहा है आपको। तो ये बोले मैम। प्लस ओके ठीक है, बाद में बताओ, पहले मैं ये लिख दूँ, ठीक है। 10 + 8 बाजू में 2 + 8 + 2 then 5 8 + 0 1 + 8 + 0 10 + 12 + and 2 + 12 + 0। अब बताओ अंकित। 26 12। ओके 39 यस 22 14। यस गुड। तो ये आंसर मिलेगा 26 12 13 9 22 and 18।
ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन सबको आई थिंक इजी लग रहा होगा. થોડું થોડું મેડમ એટલું બધું નહીં બહુ આમ તો અઘરું જ છે ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરશો આવડી જશે. सिमिलरली बी ए कैलकुलेट करना है. ओके, तो चेक करते कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. मैम पहले इनको लिख लेने दीजिए ना. हाँ हाँ, श्योर श्योर, लिखो. तो बकरी कौन चलाने जाएगा फिर? क्या? मैडम थोड़ा पीछे वाला स्लाइड दिखाती जरा. हाँ, ये वाला. हाँ थोड़ा सा और मैडम ऊपर जाए. ओके, हाँ ओके. हो गया. जी मैडम. और ओके, मैडम हल्का ऊपर गिरिए जरा, वो स्क्रीनशॉट लेने का. ये सिर्फ आंसर्स थे, तो ये कंसिडर मत. ओके डन मैडम. हो गया आई थिंक सबका. યસ મેમ ओके, आई थिंक हो गया है सबका. ठीक है, हम जाते हैं बी ए की कैलकुलेशन पे. तो लेट्स कैलकुलेट बी ए. तो पहले तो हमें चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो बी का ऑर्डर क्या है? बी क्रॉस टू. 3 into 2. और ए का क्या है? तो 3 3 into क्रॉस 3. 3. नाउ सी, दोनों इक्वल है. बी की नंबर ऑफ कॉलम और ए की नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं मैम. ही है. तो देयरफॉर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसे ही बात खत्म हो गई. अब आगे कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं होगी हमें इसमें, राइट. तो लिखो सच.
second one. ए बी कैलकुलेट करना है और बी ए बी, तो पहले हम ए बी कैलकुलेट करना है, तो हम चेक करते हैं ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैडम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सबको धीरे से आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम, ओके, आई आवाज थिंक स्लो आ रही है अब सही है, अब सही है। यस मैम। ओके ओके डन, क्लियर। यस मैम। ठीक है। ओके, तो अब ए का ऑर्डर निकालो। क्या है ए का ऑर्डर? 3 into 2. यस गुड, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। सिमिलरली बी का ऑर्डर क्या है? 2 into 3. यस गुड, 2 क्रॉस 3। अब ए बी कब एग्जिस्ट होगा? तो ए की नंबर ऑफ कॉलम Column. एंड बी की और नंबर B ऑफ का रो इक्वल है। हाँ इक्वल है, ओके इक्वल है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट एंड इट इज ऑफ ऑर्डर 3 into 3. यस वेरी गुड, 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 का किस टाइप का ऑर्डर वो होगा, सॉरी कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे हम? तो सी मैम। कितने एलिमेंट्स है? हाँ हाँ मैम इसका संतोष, कैलकुलेशन सेल्फ से एक बार करके इसका कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिए। आपकी सबकी आवाज देखता हूँ, मुझे उसके ना, बाद मैम लास्ट में मे आप मेरे यहाँ ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। संतोष मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। से बता देते हैं ताकि समझ में क्लियर हो संतोष मुझे जाएगा आपकी मैम। आवाज ही नहीं। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ मैडम। यस मैम। मैम मैं ये संतोष की कह रहा आवाज हूँ। सबको मिली? यस मैम, पर कट कट हेलो आती मैम। थी। हाँ ये ऑडिबल। आवाज उसकी क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ वही, वो बोले ही जा रहे हैं और मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सामने वापस से बोलो हमने नहीं संतोष। खबर पड़ती। ओके लिव इट देन। संतोष आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। ये ए बी का कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे? तो कितने एलिमेंट हैं की रो में, सिमिलरली बी की कॉलम में तो 2 एलिमेंट्स है, तो ऐसी कितनी पेयर्स होगी? 2 पेयर्स, तो ऐसे 2 पेयर्स लिख दो। और 3 का है तो टोटल 9 हमें लिखने होंगे। ओके तो पहले हम ऐसे ब्रैकेट्स लिख देते हैं। अब 3 क्रॉस 3 का हो गया। अब इसका मॉडल कैसा होगा ए बी का 3 क्रॉस 3 वाला? तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ओके तो ये पहली एंट्री हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा। मीन्स कि ए की फर्स्ट रो, बी की फर्स्ट कॉलम। ए की फर्स्ट रो क्या है? तो Minus -1 1. एंड 1। तो मैडम -1 यहाँ वो पे, हाँ ये एग्जाम में मॉडल लिखना अनिवार्य होगा? ये भी नहीं, मैंने बताया ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको सिर्फ यही लिखना है। इसलिए तो मैंने जो आगे यहाँ पे सी, मैंने आगे जो कैलकुलेशन किया यहाँ पे कहाँ मॉडल निकाल दिया, तब मैंने बताया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं निकाल देती हूँ। ओके मॉडल सिर्फ आपके समझने के लिए, ये बुक में भी आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा इस टाइप का, कहीं पे भी थैंक मेंशन यू नहीं मैडम। किया है। ये सिर्फ मैंने बनाया है आपकी समझ के लिए। ओके और फर्स्ट कॉलम बी की क्या है? तो 3 एंड -1।
1 2 नेक्स्ट ये वाली 1 2 एंट्री, तो 1 2 मीन्स कि ए की फर्स्ट रो -1 1 एंड बी की सेकेंड कॉलम 2 5। देन ये वाली 1 1 3 एंट्री होगी, तो फर्स्ट रो ए की -1 1 एंड थर्ड कॉलम बी की 3 4। ऐसे ही सेम आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। एवरीवन राइट डाउन और कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ। बोले मैंने सर। -4 3 1 Okay, wait. Let me check the answer first. I have my own calculations. Let me check it. Yes, please. बताओ -4 3 अनुज। 3 1 ओके, कोई एक बताओ चल जाएगा। -4 3 1 हाँ પછી 14 -2 4 हाँ -2 10 8 यस गुड एकदम साચું મેડમ. ओके। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेरी है तो मुझे बताओ। -4 3 1 then 14 -2 4 and -2 10 8। सबको ऐसा आंसर मिला? यहाँ पे मैं ए बी लिखना भूल गई हूँ, आपको छोड़ना नहीं है। ये ए बी दोनों मैट्राइसेस ये लिखने ही है। मैम अगर कैलकुलेशन में ये प्लस माइनस मिस हो जाए तो ना इसका कितना मार्क कट सकता है इसमें एग्जाम यस, में? मार्क्स कट हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं होंगे ही। क्या पर કેટલા માર્કમાં एंट्री? પૂછે એમ પૂછે મેડમ. हाँ, यहाँ पे लिखा ही है, सी यहाँ पे मैंने लिखा है 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। मीन्स कि हर एक कैलकुलेशन 3 मार्क्स की। यहाँ पे क्या कि ए बी एग्जिस्ट ही नहीं था फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में ए बी एग्जिस्ट हो रहा था, बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसका 1 मार्क और बाकी का 5 मार्क। तो उस हिसाब से कितनी कैलकुलेशंस में डिवीजन हो सकता है, उस हिसाब से मार्क्स कट होंगे। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें अगर बी ए बी दोनों एग्जिस्ट करता है तो दोनों के 3 मार्क्स, तो उस हिसाब से मार्क्स कटेंगे। अराउंड हाफ मार्क कट हो सकता है एक एंट्री अगर गलत है तो। और साइन में गलती है, मीन्स की प्लस या माइनस में ही सिर्फ गलती है तो हाफ मार्क। और बाकी 1 मार्क भी कट हो सकता है, तो ध्यान में रखना आप। आई थिंक ए बी सबका मिल गया है। कोई बाकी है कैलकुलेशन करने में, किसी का बाकी हो कैलकुलेशन? आई थिंक नहीं है। बी ए की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए पहले चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं ये प्रोडक्ट। तो बी का ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 3। यस, और ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 यस। तो अब चेक करो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी एंड नंबर ऑफ रोज इन ए आर इक्वल। यस, तो इक्वल देयरफॉर है हाँ, तो ये एग्जिस्ट बी ए प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए एग्जिस्ट एंड इट इज ऑफ ऑर्डर 2 into 2 यस 2 क्रॉस
सो कैलकुलेशन करो ये ए बी ए की कैलकुलेशन। तो बी ए पहले तो मैट्राइसिस लिख देने हैं, ये ध्यान में रखना है क्योंकि गलती हो सकती है, 50% चांसेस है। ओके, बी देन ए। ओके, नाउ कितने बाय कितने का होगा? 2 क्रॉस 2 का आंसर। तो ऐसी पेयर्स कितनी लिखनी होगी? तो जितने एलिमेंट्स रो में और सेकेंड वाले के कॉलम में है, कितने हैं? 3 3, तो ऐसी 3 पेयर्स बनानी है। ओके, 2 क्रॉस 2 का करना है तो 4 ऐसे एलिमेंट्स लिखने होंगे हमें। तो ये तीसरा एलिमेंट और ये फोर्थ। हाँ, हो गया 2 क्रॉस 2 का। अब बी एक का मॉडल बनाओ 2 क्रॉस 2 का। तो क्या 1 1 1 2 2 1 2 2। हाँ, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है आपका। लास्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स बाकी है। कि फास्ट एवरीवन, ये कैलकुलेशन करके ही जाना है। आंसर बोले मैम? हाँ बताओ। 5 21 माइनस 3। 21 अनुज, 19 नहीं। अनुज 19 बोलो मैडम। हाँ, 21 माइनस 3 होगा। इसका आंसर होगा, यहाँ पे लिखी हूँ मैं, 5 5 21 माइनस 3। राजकुमार, टर्न ऑन योर माइक। યસ મેડમ. હા, ક્યાં હતા વચમાં જ્યારે હું બોલાવતી હતી? મેડમ વોશરૂમ ગયો તો હું એટલે અને નીચે બોલાવતા હતા પપ્પા. ઓકે, હવેથી આવી રીતે વચ્ચે લેક્ચરની વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ નહીં જોઈએ, પેરેન્ટ્સને કહી રાખવાનું। ઓકે, ઓકે મેડમ, ઓકે. ठीक है। ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है 5 5 21 माइनस 3। नाउ चैट बॉक्स आई थिंक ओपन ही है, सबने अटेंडेंस अच्छा दे के रखी है? गुड। હા મેડમ, અત્યારે ભાઈ હજી મેસેજ આવ્યો કે અટેન્ડન્સ આપી દો બધાય। અભય છે અહીંયા? હા, ઓકે, ओके, सबकी अटेंडेंस हो गई है? अगर है तो हाँ कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हो। राज उल्टू लखेलू है, પેલા 6036 પછી રાજ। યસ પવન। રાજ ફરીથી અટેન્ડન્સ આપી દો। યસ મેડમ. બીજા બાકી ઓકે, મેમ, બીજા બાકી આપણે ગણવાના? બીજા ના 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 એ હા સાથે કરવાના મીત। નો, મારા પહેલા તમે સ્ટેટમેન્ટ આપી દેશો। मैडम अटेंडेंस हो गया, हमें लीव हो जाओ। हाँ हो जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे ये क्वेश्चंस। મેમ खुद એને से नहीं જાતે करे, કરવા सिर्फ देवाय तो एडिशन કઈક वाले શીખશે ही, ઈ। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ही करने हैं आपको खुद से। હું તો કરી લઈશ। हाँ ओके, वांधो नहीं। तो मैम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मैम लैब में बेसी समझ। यस आनंद। એમ તો જાતે ટ્રાય કરીને થાય તો हाँ तो करो, પછી नेक्स्ट लैब में શું કરશો? મીત એટલે શીખશું પાછા, બીજા નહીં આવડે ને શીખડાવશું બીજું। ओके ठीक है, you And can then leave now। okay, goodbye everyone, thank you so much। हेलो मैम, yes अंकित। एक मैम डाउट है। जो आप हाँ कल बताओ। सोल्यूशन जो किए थे ना, हाँ उ- उसमें मैम आपका आता है
-8 और हमारा मैम आता है -10। ऐसा क्यों? कौन से क्वेश्चन में? अम, जो कल बनाने के लिए पीपीटी में दिए थे ना, अच्छा, सेकंड हाँ में। हाँ, हाँ हाँ। और आंसर लिखे है उसका सेकंड में कौन सा वाला, ए बी या बी ए? ए बी। ए बी, उसमें कौन सी एंट्री? मैंने लिखा है -4, -6, 7, -8। यस मैम, यहीं पर 8 के जगह पर हमारा -10 आ रहा है। ओके, मुझे चेक करने दो, ठीक है, मेरी मेरी गलती हो सकती है। वेट, मैं चेक करती हूँ। आपका माइक ऑफ कर दो। ओके मैम। ए बी में है ना? ए बी में सेकंड क्वेश्चन, सही है यस ना? मैम। ओके, आपका मैम कितना आता है? मेरा तो लेट मी चेक अगेन। योगा 8 -15 -3, हाँ -10, सही है, सही है, आपका सही है। और मैम बीए में आपका -8 है और हमारा -6 है मैम। इसको भी थोड़ा सा मिला जो दीजिए। 1-2 एंट्री है वो, वही ना? कौन सी एंट्री? बी ए में कौन सी एंट्री? अंकित? यस मैम, बीए में 3-1। 3-1, अच्छा, चेक करने दो। 3-1 एंट्री। ओके, 0 -6 आएगा, सही है। और मैम हम्म, थर्ड का ए बी में भी देखिए। हाँ, ए बी में हमारा आता है 0, 9, 10। 0, और 9, मैम 10। ओके यस मैम। ओके, देखने दो और मुझे। देखिए हम्म, जीरो 9 10 नहीं आएगा अंकित, 2 ही आएगा। 0-2 करके, 1 मिनट मुझे चेक करने दो। और एक मैम हाँ। ऑप्शन मैम बोलते हैं इसका है 10 to 70। 1 मिनट, ए बी का ये मैम। इसका आंसर होगा। मैंने लिखा है 0 14 11। यस मैम। कुछ तो गलती है, पूरा गलत लिखा है। मेरा आंसर मिला हमारा है 0 to 17। और मैम हमारा आता है 10 to 70। 10 to 17। यस मैम। मैं पूरा चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है? क्लास में अगर कुछ भी अपडेट है तो मैं बताती हूँ, ठीक है? मैं चेक कर लेती हूँ। ओके मैम। ओके। और मैम हाँ, आप आपके पास मैम आ सकते हैं हम एक दिन के लिए मिलने के लिए बस। आपको जो भी क्वेरी है मुझे आप ऑनलाइन बताओ ना, क्योंकि